I'd like to welcome all of you in this webinar. Actually, today's topic we have selected considering the fact of income tax draft 2026 and what will the future of the valuers. So that will be discussed. Um, from last few days, we were working on that. Just now at 4 o'clock also, we had a legal committee meeting. We completed some 10 to 15 minutes back. So we will be with us one advocate from Delhi High Court. He will just give one small speech on this, and our legal team will also talk on this also. Considering the seriousness of the matter into account, we have decided to select this topic. Uh, but our members have been requested center-wise to represent different MPs. But I think only few of us have submitted their represent to the local MPs. But most of us have kept quiet. This is unfortunate. Unless and until we represent the same to our local MPs and we should go not to go to parliament, then that is no use. After crying after this event, it will have no fruitful result. Now each and every city we have MPs. Since tomorrow is Sunday, I am sure the MPs will be made available to you in their local because Monday the parliament is going to be start on 9th. So tomorrow within lunch hours, if you can do something, then that will better. Each and every persons of our associations should take some pain so that that can be repented. We have of course repented. Few of us have repented. We have repented our MPs of BJP, then Congress, as well also Samajwadi Party also. So no doubt we are doing well, but still then we are lacking behind. Some of the members are keeping silence and they are not yet they have done something first. Only just mailing the report to the concerned authority will not only give the spiritual meaning, rather it should be the matter should be taken up to parliament. For that, all the MPs should be informed about it of a local MP. See, we have nine member from 19 states, and we have member I think 480 or 490 members we are having. So each member, if we try, then it will give a good results. But I don't know how much of us have tried it, how much are not, and why they are not trying it. So each person, each valuers of India should take pain over it. The valuers of South India are also working hard because I am going through the photographs. They are also represented to MPs of their cities. Of course, they are supposed to go to finance minister, but till now they have not met. I think so. So our representatives should also go to the finance minister also. As far as IVA is concerned, we are doing a lot, and we are representing, and we will represent also. Whatever the demand of the council members and the legal teams, we will work on that. And you are the part of us. So each and every members of ours and each and every valuers of throughout India should work on that to become success. Otherwise, it will be a very much trouble for all of us. Anyway, our council and legal committee, of course, legal committee working hard up to 10 o'clock night. They're also working and they're reporting to me. So, no dice. On behalf of you all, I'd like to thank you, thank the legal committee, all the members who are directly participated in it. I'd like to thank them. Of course, this is our personal problem also, not the association, because if something will happen, then we'll also be disturbed. Anyway, today meeting will be the last meeting. We had taken the various suggestions that will be forwarded to the council meeting, council committee. And council committee will sit on next Saturday, that is on 14th. So 14th, this will be whatever suggestions were there of the legal committee that will be approved in the council. Then after that, we will go forward. No doubt, we are working for our members and we will work for our members. So you should start working something, or you should give some guidelines to the our team also, so that we'll progress accordingly. Now we'll have our one speaker. He will speak on this topic. He's advocate Sanjeev Panda from Delhi. Basically, he's from Odisha, but he's practicing in Delhi. So now I'll like to request Anand Singh, our legal committee head, as well as vice president, to introduce him. Now Anand Singh is requested to, of course,
Sanjeev will may come some those two few minutes late, but still then we'll start a formality. If you will late, then I request Sugata ji from Jaipur to start speaking. Then in between he will come and join us. Now I request Anand Singh to introduce our chief guest speaker. जी है तो वे नोएडा दिल्ली एनसीआर में उनकी एक फर्म है जिसका नाम है मेसर्स लैब पार्टनर्स और इसको इन्होंने ये इसके मतलब संस्थापक पार्टनर हैं तो मुख्य रूप से दिवालियापन मामलों के साथ साथ कानून के विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इसके दूसरे पार्टनर हैं शुक्ला तो वो खुद भी इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट हैं और लागत लेखाकार भी। ये दिवालियापन और दिवालियापन संहिता आईडीसी के तहत मुकदमेबाजी की पूरी प्रक्रिया देखते हैं और कारपोरेट ग्राहकों समाधान पेशेवरों को कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया CIRP और IDC व्यवस्था के तहत परिसमापन प्रक्रियाओं में सलाह भी देते हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों के पहलू में भी हैं और उन बैंकों की ओर से ऋण वसूली जो मामले होते हैं NCLT से रिलेटेड वो भी वो उसके समक्ष पेश है। ये उनका संक्षिप्त पढ़ते आगे की कार्रवाई का साथ। संजीव इज ऑल्सो हियर। संजीव में मेरा छोटा भाई है। वो IIT कानपुर में से मेरा काफ़ी दिन से मैं जानता हूँ, करीब 20-25 साल जानता हूँ। वो अभी वहीं प्रैक्टिस कर रहा है। मैं संजीव के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए और हमारा जो 34 जो क्या नाम जो इनकम टैक्स एक्ट है रही है उसके बारे में कुछ बताएं और हमारा उसके फ्यूचर से क्या उसमें होगी होता है ये, ताकि हम भी थोड़ी सी फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाए। तो संजीव पंडा प्लीज। Thank you, sir. I apologize because there is some technical issue with my camera, so I will not be visible, but my words will reach you. Good evening, gentlemen. So it gives me immense pleasure and honor to be here in this august gathering, invited to speak on the topic which has been given to me. So मेरा परिचय तो आनंद जी ने दे दिया है। एक उसमें एक संक्षिप्त सा एक उसमें करेक्शन करना चाहूँगा। मैं लागत लेखाकार नहीं हूँ। I am not the cost accountant, but my partner is a cost accountant. He is also registered as a resolution professional with the IBBA. So we are advising basically CIRP, that is corporate insolvency resolution process and liquidation process. तो इन दो प्रोसेस में हमारा वास्ता वैल्यूअर से पड़ता है, वो वैल्यूअर से जो कि IBBI से रेजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग CIRP the RP, it is incumbent upon the RP to appoint 2 registered valuers in each category of assets, that is land and building, plant and machinery, and security and financial assets, which has to be appointed. The 2 valuers have to be appointed within 7th day of the insolvency commencement date, and but not later than 47th day of the insolvency commencement date. तो उसका जो पर्पस ये है कि वैल्यूएशन एसेट्स का होने के बाद इट गाइड द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इन इवैल्यूएटिंग द रिजोल्यूशन प्लान्स दैट आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। और ये जो वैल्यूअर्स होते हैं दे आर रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, the CBDT has invited suggestions from the stakeholders on the proposed income tax rules and the related forms framed under the newly enacted Income Tax Act 2025, which is scheduled to come into force from 1st April 2026. Now, in preparation for implementation, the Department of Revenue under the Ministry of Finance has released the draft rules and forms for public consultation, and it appears that the government wants to adopt the consultative approach aimed at smoother transition and better compliance. However, the fact as it seems is that it is mere an eye wash, because ये consultative process होना चाहिए था, but ऐसा लग रहा है कि just they have invited feedback from the public, including the stakeholders, with no discussion, deliberation whatsoever with the actual stakeholders. Actual stakeholders आप लोग हो valuers,
30-40 साल पुराने जिनके पास एक्सपीरियंस है और 30-40 साल इस प्रोफेशन के रहने के दौरान आपने एक स्पेशलाइज्ड स्किल और एक अनुभव अर्जित किया है कि जो कि आप अपने आने वाले जनरेशन के साथ शेयर करते हो। अब जो लेना लो करो। ये जो ड्राफ्ट रूल है इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। तो जो सेक्शन 514 है जो कि एक सब्सटेंशियल लॉ है, उसी के अंतर्गत ये रूल फ्रेम हुए हैं। दैट इज पर्टिकुलरली रूल 247 सब मिलोगे तुम यहाँ बैठो। which provides the procedural and operational framework for giving effect to the ये मैं व्हाट्सएप कर दूँ? this section 514. तो डायरेक्ट आई एम कमिंग टू द टॉपिक। जो सेक्शन जो पर्टिकुलर जो रूल हमको इम्पैक्ट कर रहा है, वी आर कंसर्न्ड विद रूल 247 which covers the qualification required for a person to be registered as a valuer. Now if you come to that particular rule, मैं इसको भी रूल में ओपन करके just I am trying to read it out. एक वो लड़की सत्येंद्रनाथ वाली रहेगी, वो दिखाओ। इसमें जो रूल 247 है जिसकी हेडिंग है क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 514 ऑफ द एक्ट, इसमें सब रूल 2 में दे हैव गिवन दे हैव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट्स। उसके बाद हम आते हैं जो हमको इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, वो है आपका सब रूल 5 सब क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। I am reading out clause 5. Notwithstanding anything contained in sub rule 1 to 4, no person shall qualify for registration as a valuer if he has been dismissed or removed from the government service, or he is not a valuer member of a valuer organization registered under the company's registered valuers and valuation rule 2017. तो ये एक restrictive clause है। Clause sub clause C. He is not been recommended by the valuers organization registered under the company's registered valuers and valuation rules 2017, of which he is a valuer member for registration as a valuer. तो ये आपके जो दो restricted clause है ये आपको पूरा टोटली exclude करता है। So in practical जितने भी valuers हैं now they have to move through the RVOs. हमारी बोल देखो क्या बना। Now at this stage let me clarify that the parliament holds the plenary power to legislate. They have the power because being the our representative, they can make the law, they can amend the law, they can repeal the law. But still, there is a scope of judicial scrutiny, which acts as a check on the illegal and arbitrary exercise of power by the parliament. So, normal course में क्या होता है? The parliament can make the law. The courts, their basic role is just to interpret the law. Now यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, जो इस पर्टिकुलर दो रूल्स को अगर आप देखते होंगे, तो इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा ग्लेरिंग होती है। मैंने इसको yesterday just I have gone through it. That the most glaring point which I have noticed is whenever any new act is passed, or when it comes to the statute book, any act or the rules regulations that are framed thereunder, always there is a some grandfathering clause which is specifically drafted to save the जो existing class है, जो existing group of persons है, एक existing framework पे चला आ रहा है, उसको डिस्टर्ब न करने के लिए grandfathering clause normally होता है, normally most of the cases। इसमें वो बिल्कुल टोटली एब्सेंट है। तुमने देखा नहीं, फोटो देखो। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक इन्होंने टोटली एक बहुत बड़े ग्रुप को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया विदाउट एनी रीजन। आपने अपने रिप्रेजेंटेशन सीपीडीटी को दिए, सिलेक्ट कमेटी को दिए। अब वो रूल में नीचे अगर नहीं आती है, ये जो रूल अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज पास एज इट इज, दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू ऑल। तो मेरे हिसाब से अगर इसको हम देखते हैं तो इट हैज टू पास 2 टेस्ट, दैट इज टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशियर। तो
आर्टिकल 14 जो है, जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल्स एंड इक्वल लॉ शुड नॉट बी अप्लाइड टू द अनइक्वल्स। यहाँ दो कैटेगरी के लोग हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल 14 है, फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या है कि ये अगर देखेंगे कि ये दो, एक आपको एक्सक्लूड किया है, एक वैल्यूज को, एक जो वही वैल्यू हो सकते हैं जो कि आरबीओ से रजिस्टर्ड हो, ये तो ये क्लासिफिकेशन कर रहा है, but whether this classification is reasonable or not, that is the main contention. तो reasonable classification होने के लिए there are two tests, that is the classification is based on an intelligible differentia, that is clear non-arbitrary distinction, distinguish grouped persons from those who are left out of the group. And second thing, the differentia has a rational relation with the object that is sought to be achieved by the act. अब यहाँ पर इन्होंने जो एक ग्राउंड फादरिंग क्लॉज का जो एब्सेंस है, दैट इज दैट प्राइमा फेसी दैट सीम्स टू बी अनरीजनेबल, आर्बिट्रेरी। आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। दूसरा, इनको जब ये रूल्स बनते हैं, रूल्स नॉर्मली कम्स दे कम अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक्ट तो पार्लियामेंट में आती है। जब जो नॉर्मली रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, ये एक कंसर्न स्पेशलाइज्ड जो मिनिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक माइनिंग लॉ बन रहा है तो उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग बनाएगी, सो दैट उसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं दे मे बी इन्वॉल्व, जिनको उनकी सब्जेक्ट की समझ है वो उस रूल को बनाए। साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन से जिनका जो प्रभावित होंगे, उनको बोर्ड पे लिया जाए और उनसे जो सुझाव, ताकि वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो कि समझते हैं 30-40 साल से, तो वैल्यूअर्स हैं, they very well understand what are the practical challenges, what are the problems they are going to face in this particular rules that are going to be amended, so they should have been taken on board. उनके जो प्रैक्टिकल सजेशंस हैं वो उनको कंसिडर करना चाहिए था और वो जेन्युइन कंसिडर उनको लेना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, जस्ट एक फीडबैक ले लिया आपसे, ईमेल आपने भेज दिया, बस आपको कहीं बुलाया नहीं गया, नहीं आपके सजेशंस में लगी, ना कि कोई इसका प्रॉपर डिस्कशन हुआ, जो कि होना चाहिए था नॉर्मली, और इन्होंने ये रूल्स पास कर दिए। तो ये टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को मेरे हिसाब से जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, इसको ये प्राइमा फेसी ये पास नहीं कर रहा। तो ऑन दैट ग्राउंड there is a scope that this particular rule can be challenged if it is passed as it is in the court of law. And as of now we are not clear कि जो हमारे सजेशंस हैं उन्होंने लिए कि नहीं लिए हैं। तो अभी तो ये we just have to wait and watch ये रूल किस तरह से ये पास हो जाता है। अब अभी as of now हमारे पास एक रिकॉर्ड्स एक्ट के पास होने से पहले अभी हमारे पास क्या है, एक पार्लियामेंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स है हमारे पास। सबसे पहला कि we direct representation to the concerned ministry, that is Ministry of Finance. We should give a detailed representation to the Ministry of Finance, and जिसमें कि हम अपने सारे ऑब्जेक्शंस और सारा जो भी इनपुट्स हैं उनको हम दे दें, और ये भी लिख के हम उसमें ये भी पॉइंट आउट कर दें कि हमने अर्लियर रिप्रेजेंटेशन सीबीडीटी को दे रखा था और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमको वोट दिया जाए और हमें पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाए, जो कि वो नहीं उन्होंने किया। दूसरी चीज, आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोनों साइड के, जो पावर में है और जो पावर में नहीं है, दोनों के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करिए, ताकि ये फ्लोर ऑफ द हाउस, ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जब ये टेबल होता है तो उस पर एक मीनिंगफुल डिबेट हो सके। एक तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद जब ये पास हो जाता है, देन ऑलवेज, जैसे मैंने बताया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो टेस्ट है, जो दो टेस्ट है, उसको ये प्राइमा फेसी पास नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ग्राउंड फादरिंग क्लॉज जो मोस्टली एक्ट में होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पोर्ट्स ट्रांजिशन, वो इसमें कहीं ना कहीं एब्सेंट। तो वो हम लेटर कोर्स में हम एक्ट पास होने के बाद we would see what are the legal reports available to us, and accordingly we will find the way. सर इन्हीं के साथ सर I conclude my address, and thanks to you all for giving me this opportunity to address you as esteemed members. Thank you. I would like to request any member of ours
if any question, any query, then he can ask him. If any have any query. Now I'll request Sugata Biswasi from Jaipur and Anand Singh, our legal head. Both of them should tell something about this, so that will also our members will get out of it. So Sugata ji, please start. मेरे ख्याल से आनंद जी का है, आनंद जी सीनियर है and he is leading us actually. ऐसा ना, पहले सीनियर बाद में आता है, चोर जूनियर पहले आता है. नहीं क्या आनंद बताओ. आनंद तो बार बार यही कह रहा है. Sir, thank you everybody. Good evening, all my esteemed friends and my seniors. Sir, basically सारे पांडा साहब ने सारे कुछ बता ही दिया and इसके पहले दास साहब ने भी अच्छा ब्रीफ किया. तो अभी क्या हम कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, just bear with me if I'm some mistakes in spelling Hindi. जो हम कोशिश कर रहे हैं बेसिकली दो दिशा में कोशिश कर रहे हैं सर हम. जो एक तो जो पर्सनल लॉबिंग जो है विद द, जैसे आपने वकील साहब ने बताया, जैसे विद द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ ऑपोजिशन एज वेल एज द गवर्नमेंट. एक तो उनसे पर्सनल लॉबिंग करना, एज वेल एज जो सीबीडीटी या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उनको अप्रोच करना. दूसरा ये है जो बाकी हमारी वैल्यूअर फ्रेटर्निटी है, बिकॉज AIVA has the presence of around 19 states, say around 500 plus 500 around members. Other than that, we have got huge large numbers of 30 valuers सारे इंडिया में फैला हुआ है. तो हमारी एक प्रयास में एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए, प्लस पर्सनल कई लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, सबको हम स्पेशली और साउदर्न स्टेट फ्रेंड्स उन्होंने काफी अच्छा रेस्पॉन्स किए, तो उनको हम एक ऑनबोर्ड करके प्रोसेस हमने चालू रखा है लास्ट 1 महीना से. मान के चलिए लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ये जो ड्राफ्ट रूल है ये नोटिफिकेशन में आया था एग्जैक्टली 1 महीना पहले. उसकी बाद से हमने प्रोसेस चालू किया इस चीज को धीरे धीरे करके. स्पेशली साउदर्न जो स्टेट्स है हमारी, वहां से जो डिफरेंट वैल्यू एसोसिएशंस है और मेनली जो इंडिविजुअल 30 वैल्यूअर्स है, इवन इफ सम non-30 valuers also they have shown a great support to the cause. तो हमने दो तरीके से कोशिश कर रहे हैं. एक तो हम जो लीगल तरीके से प्लस ऑल द प्रोसीड्यूरल कोशिश कर रहे हैं, प्लस साथ में जो हमारी वैल्यूअर बिरादरी है उनको भी साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम एक समूह में मतलब इन्हें ग्रुप हम इसको चीज को एड्रेस कर पाए. क्योंकि हमारी रीच केवल मतलब 19 स्टेट्स में, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रीच नहीं है. कुछ स्टेट में जैसे यूपी में बहुत अच्छा रीच है एंड अराउंड और भी आसपास के स्टेट्स में, बट बाकी स्टेट्स पे इतना नहीं है. तो साउदर्न स्टेट्स में जो हमारी साउदर्न वैल्यूअर्स है, साउदर्न स्टेट्स के जो वैल्यूअर्स है 30 वैल्यूअर्स, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनसे काफी अच्छा बातें हो रहा है. दे अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल और वो लोग हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दो तरीके से है हमारी काम चल रहा है. और बाकी तो दास साहब अच्छा बताएंगे चीज को. और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हम अपने जो डिजायर्ड जो एजेंडाज है व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड, हमने 3 बेसिक एजेंडा बनाया सारे लोगों से डिस्कस करके विद लॉट ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस, डिफरेंट लोगों से बात करके उनके सुझाव लेके हमारी लीगल टीम एज वेल एज कोर कमेटी अलग से डिस्कस करके आप लोगों से पर्सनली एज वेल एज डिफरेंट वेबिनार के थ्रू डिस्कशन हुआ. बाकी की जो 30 वैल्यूअर जो AIVA के पार्ट नहीं है उनसे डिस्कस हुआ, डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस करके हमने 3 जो एजेंडा है जिसको हमने अपने बार ग्रुप में देख रहे हैं, हमें डिफरेंट लेटर्स के फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, उसको फ्रीज किया गया. बेसिकली यू कैन कॉल इट सम नॉट पॉलिटिकली कॉल इट कॉमन मिनिमम एजेंडा. इनसे तीनों में हम बात कर रहे हैं बेसिकली. इसके अलावा भी कई सारे एस्पेक्ट्स है जो कि ये जैसे सर ने बताया, पंडा सर ने भी बताया थे, 246, 247, 248, 249 एंड फॉर्म नंबर 169, 170, ये 6 डॉक्यूमेंट है. इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सजेशंस और ऑब्जेक्शंस हमारे थे जो कि 9 अटैचमेंट पे आप लोगों ने डिफरेंट लोगों ने जमा किए टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टिल 22 एक्चुअली.
तो ये हमारी एफर्ट अभी तक है, बाकी दास साहब और बताएंगे आगे। थैंक यू सर। सुगंधित धन्यवाद। एक्चुअली मेहनत आप ही लोग कर रहे हो, रात को 10-11 तक आप सुबह बात होती रहती है। तो बाकी तो हम लगे हुए हैं। अगर और किसी का कोई सजेशन है, देखो जो हमारा काउंसिल और लीगल का कहना है, जो मिस्टर पंडा ने बताया, वी शुड अप्रोच टू द लोकल एमपीज एंड वी शुड हैव पॉलिटिकल अप्रोच आल्सो। वी आर ट्राइंग आउट आवर लेवल बेस्ट एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू शुड बी टेक पार्टी इन दिस। अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने बताया, हमारे पास कांग्रेस का भी एमपी का आ गया, सपा का भी आ गया और बीजेपी का आ गया, और कोलकाता से तो टीएमसी का आना था, लेकिन शायद आज कोई रथयात्रा बीच थी इसलिए उन्होंने डाला था। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत जगह से है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। तो अगर थोड़ी सी अगर मेहनत करी जाए तो कल तक और कुछ आ सकती है। अगर आपको और कुछ सुझाव देनी हो, देखो सुझाव, छोटी सी सुझाव भी हमें आगे बढ़ने की बड़ी मदद करेगी। तो अगर आपका कोई सुझाव देना, हम तो काम कर ही रहे रात दिन। हम मेरे ख्याल में हम देखा 8 फरवरी से लेके सब पहला मीटिंग 9 तारीख को हम लोग थी, 9 तारीख से लेके अभी तक हम अभी काम कर ही रहे। तो अगर आप लोग किसी का भी कोई सुझाव हो अगर दें तो हमारे लीगल कमेटी वाले बैठे हुए हैं, तो और उसको भी थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर दें और हम भी देख लें हम कहाँ तक आगे उसको बढ़ सकते हैं। और प्लीज जो सीटी से लोग हैं, तो सबसे अनुरोध है कुछ ना कुछ सुझाव जरूर दें ताकि हम उसको मैटर को टेकअप कर लें, प्लीज। तो मेरे ख्याल में और किसी सुझाव नहीं है। तो जो कॉमन एजेंडा है, जैसे सुगंधा जी ने बताया कि एक्चुअली हम लोगों ने शायद 6-7 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। दो तो हम लोगों ने किया पूरा ऑल ओवर इंडिया बैलर्स लेके, तो सबको लेके जो कॉमन एजेंडा बात हम हो रही है, और 3 कॉमन एजेंडा शायद तो मेरे ख्याल में है। नंबर 1 एक तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है, नंबर 2 आपका आरवीओ वाली बात है कि वी डोंट नीड आरवीओ, वी शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल द आरवीओ, ये मेन एजेंडा मेरे ख्याल सबकी है। और नंबर 3 जो थी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर है। अभी कुछ ऑफिसर से हमारी बात हुई, जैसे मैंने लीगल कमेटी मीटिंग में कहा, क्योंकि वो भी मिनिस्ट्री में थे, फाइनेंस में थे, तो उनके बातें क्या है, उनका दिमाग हमने स्टडी करी, तो उसी से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉमन एजेंडा है पूरा ऑल ओवर इंडिया का वैल्यूर से जो रूट जो निचोड़ है, ये निचोड़े 3 है। नंबर 1 कि हम ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के हिसाब से, जैसे आपका क्या ना इंश्योरेंस सर्वेयर की या आर्किटेक्ट वालों की, या फिर आपका जैसे आईपीसी से बीएनएस हुई, उनकी जैसे जरूरत नहीं पड़ी उनको एग्जिस्टिंग करी गई। तो हमारा जितना भी 34 AB का रजिस्टर वैल्यूर है, उनको सभी को सरकार माने और उनको किसी के आरवी के अंडर में उनको एंट्री न करे, और जो आज तक में जो भी 34 रजिस्टर वैल्यूर है उनके साथ वो कुछ न करे और उनको एप्लीकेशन देके उनको अक्सेप्ट कर ले, मतलब वो किसी के अंडर में जाना कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक टेक्निकली बात हो रही थी, एक्चुअली हमारा आज कभी आधे घंटे बहस हुई थी, मतलब डिस्कशन हुई थी एक बहुत बड़ा ऑफिसर से, तो उनका कहना था कि आपका टेक्निकल अपग्रेड होना जरूरी है। तो हम लोग का कहना था जो लीगल ऑफिसर सजेशन है कि हमारे पास टेक्निकल वर अपग्रेडेड। देखिए हम आइभा का, जहाँ तक आइभा का मेंबरशिप का सवाल है, जो हम हर महीने 2-2 घंटे का वेबिनार करते ही करते हैं, और हम लोग सीखते हैं, हम लोग टेक्निकली नॉलेज रहते हैं, हम अपना टेस्टिमोनियल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, कोई ये नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे पास टेक्निकल बैकग्राउंड ये ना सोचे जाए कोई भी कि ये तो मतलब कि 34 वाले कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हम लोग वी आर मोर वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे पास टेक्निकल नॉलेज बहुत सारे हैं, और टेक्निकल नॉलेज के लिए एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेलो एसोसिएशन हर महीने टेक्निकल सेमिनार मतलब वेबिनार भी करता है, और साथ में टेक्निकल मंथली नेशनल सेमिनार भी करता है। इसलिए जहाँ तक टेक्निकल का नॉलेज है, हमें इतना नहीं कि ज्ञान नहीं है। और हम लोग को ये जरूर है कि जैसे आप हमको जैसे आरवीओ हमें 1 घंटे पढ़ा के और लेते हैं कि पॉइंट देते हैं, हम कह रहे हैं 2 घंटे तो हम पढ़ा रहे हैं भाई। अगर देखा जाए हम 6 बजे से लेकर 8 बजे 2 घंटे तो पढ़ते ही हैं, और विद द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी एंड द चीफ गेस्ट जो सम बैंक्स एंड सिटी। तो इसलिए पढ़ाने में मतलब कम कुछ नहीं, हम तो किसी मेंबर से पैसा लेते नहीं। तो इसलिए जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज है, हम आरवीओ से कहीं ना कहीं आगे हैं।
आरबीओ ही क्लेम करता है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे तो हम कहेंगे आप तो 400 रुपया पर क्लास लेके आप 12 पॉइंट के लिए 48 रुपया 500 रुपये लेते हो, हम तो 1000 लेके हम पूरा 12 क्लास ही पढ़ाते हैं। इसलिए आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम नॉन प्रॉफिट बताइए। तो इसलिए जहां तो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, आईवा कहीं किसी से कम नहीं है, ना आप लोग भी कहीं किसी से कम हो, तो इसलिए हमें आरबीओ को जरूरत नहीं है। एक मुद्दा जरूर उठाई थी उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी सीनियर ऑफिसर थे, हमारे उड़ीसा की थे वो, तो उनका कहना था कि आपका जो है ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के आपके अंदर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन ये था, आरबीओ कौन सा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है? भाई आरबीओ का भी लिमिटेड दायरा है। आरबीओ में जो आपका डायरेक्टर है उससे शायद 25% 30% शायद टेक्निकल लोग हैं, बाकी नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। हम 34 AB वैल्यू, हम खाली हम नहीं 34 AB नहीं कह रहे, हम जो कह रहे जो भी वैल्यूअर है दे आर बीटेक होल्डर। अगर IBPS से पास आउट है तो 5 साल एक्सपीरियंस है, अगर इनकम टैक्स है तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल के बाद जो लोग जिसका बाल सफेद हो गया वो तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमारा अंडर, हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं तो वो भी तो उसी से क्वालिफाइड होना चाहिए ना। तो हमारा उनका ये पॉइंट था कि हम जैसे हम लोगों ने मतलब CCIT अंडर अभी तो हम काम करते थे, हमको उन्हीं के अंडर काम कर ले जाए, वो हमारा कंट्रोल में तो बने। जैसे मान लो कुछ शहर में CCIT नहीं है, CIT है, तो CIT को थोड़ी कर दीजिए। और उसे टेक्निकल नॉलेज क्या है बताइए। हम अगर मान लीजिए अभी देखो, हम आज सभी मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ हमारा लीगल कमेटी से ज्ञान लेके बता रहा हूँ, मेरा एक डुप्लीकेट कॉपी है मतलब। तो जैसे मकान बना रहे हैं, मकान जैसे पहले बनती थी अभी ऐसे बन नहीं, कोई नया थोड़ी कुछ आसमान से कोई टपका दिया मकान बन गया, ऐसा तो नहीं। उसके बाद जैसे हम इनकम टैक्स से काम करते हैं, कैपिटल गेन का काम करते हैं, उससे कोई टेक्निकल जो जितना नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा तो नॉलेज की जरूरत नहीं है। भाई हम आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कंट्रोल करता था, अभी क्यों नहीं? हम तो इस सवाल ही पूछते ना उनको जो आरबीओ इस पे ज्यादा इसके एंट्री कर रहे हैं। और फिर जैसे आर्किटेक्ट एसोसिएशन का एक गवर्निंग बॉडी है, उनका सेंट्रल में एक ही है, तो हर स्टेट में एक एक हो गया या सब सेंटर हो गया। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, हमारा हेडक्वार्टर कोलकाता में, उसका स्टेट सेंटर लखनऊ में, और बाकी जगह पे 8-10 हमारा लोकल सेंटर हो गया, ऐसा हर स्टेट में। तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट सच टाइप ऑफ एसोसिएशन जहाँ पे आप चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट वैल्यूअर्स करो, जो भी कुछ करो, यू मेक इट सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर द वैल्यूअर्स विल कंट्रोल इट। ये नहीं कि एक आरबीओ, आप एक आरबीओ नहीं है। अगर हम इंस्टीट्यूट का बात करते हैं, आर्किटेक्ट से बात करते हैं, वहाँ है कितना? एक है, उसका गवर्निंग बॉडी तो एक ही है ना। अगर इंस्टीट्यूट करेंगे वो गवर्निंग एक ही कोलकाता में। अगर आप आर्किटेक्ट काउंसिल आर्किटेक्ट करें उसका गवर्निंग एक ही है, 2 नहीं है, 14 नहीं है। तो गवर्नमेंट को शायद ये जानकारी शायद कम है कि हमारे पास जो भी आरबीओ है वो एक नहीं है, 14 है। और उसका जो क्या नाम, जो गवर्निंग बॉडी है, जो उनका स्केलेटन है, वो कैसे है वो किसी को नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि आज ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उनसे आधे घंटे का डिस्कशन, क्योंकि वो भी बहुत सीनियर ऑफिसर है, तो उनसे डिस्कशन करने पाते निचोड़ है। जैसे उन्होंने कहा कि भैया आपको टेक्निकल नॉलेज लेना चाहिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो टेक्निकल नॉलेज। वो IIT बात कर, मैंने IIT छोड़ो, IIT तो हर जगह नहीं होगा भाई। कोई अगर वैल्यूएशन काम कर रहा है और IIT कानपुर में है तो कानपुर थोड़ी आएगा। आप सिस्टम बना लो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हम अपना पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम आप 18 घंटा या 12 घंटा 14 घंटा ऑनलाइन पढ़ाते हो, हम उतने घंटे आपका ऑफलाइन पढ़ने तैयार है, उसका पैसा हम आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन हम देंगे सरकार को। तो ये हमारा आज आधे घंटे उनसे डिस्कस होने बाद, उनके बाद जो उनसे डिस्कस वो मैंने हमारा लीगल कमेटी रखा, तो लीगल कमेटी ने सजेशन लिया। तो हमारा कहना मतलब ये, हम टेक्निकली कोई कमजोर नहीं है, हम टेक्निकल साउंड इनफ एंड एक्सपीरियंस इज मच मोर मींस मच लॉट। तो हमें अगर ट्रेनिंग लेनी होगी, हमने उनसे कहा जैसे कानपुर है, आप कानपुर कमिश्नरी के अंदर फिर मान लो हर कमिश्नरी की कानपुर हो गया, झांसी झांसी हो गया, गोरखपुर कमिश्नर गोरखपुर हो गया, जो सेंटर जो कमिश्नरी है भाई, अलग अलग स्टेट जगह पे तो नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल संभव नहीं कंट्रोल करने के लिए। या तो CCIT अंडर जो कॉलेजेस है आप उनके कंसिडर करो, हम वहाँ पढ़ेंगे जाके, हम कोई जरूरत नहीं, बुढ़े हो गए वहाँ 2 घंटे खाएंगे पिएंगे, सुबह भी पढ़ेंगे शाम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट से। लेकिन हम सरकारी, हम इतना साल करने बाद 34 पास करने बाद, बीटेक होल्डर होने बाद, कोई हमारे बीच MTech भी होंगे, कोई PhD भी होंगे, इतना करने बाद हम किसके अंडर कंट्रोल में होंगे? आरबीओ। व्हाट इज आरबीओ? दे हैव नो क्वालिफिकेशन। और जिनका नो, अगर आप कह रहे हो अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर किसी को सैंक्शन करता है, कोई कॉलेज भी है, उनका बाकायदा फ्रेमवर्क है, एक गवर्निंग बायलॉज है
कि आपका इतना एरिया होना चाहिए, जो लोग आर्किटेक्ट हो उनको ज्यादा जानकारी होगा, ये कमरा इनका 20 या 25 होना चाहिए, इतना लैब होना, इतना होना चाहिए। तो आरबीओ का भी कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आप आरबीओ इतना 30,000 के वैल्यूअर्स को, जो इनकम टैक्स के रजिस्टर जिनका 30 साल का उम्र है, जो बाल पक गया, उनको कंट्रोल करेगा, उनका ही तो कंट्रोलिंग होना चाहिए। क्या सरकार को ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि वो कितना फीस कलेक्ट कर रहे हैं? वो भी तो मानक होना चाहिए। क्या सरकार को ये उन्होंने नहीं चाहिए कि हम इंडिया भर में कितना हमारा पास एसोसिएशन है, कितना आरबीओ है? जैसे हम अगर करते हैं कि ये गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, गवर्नमेंट तो एक ही होना चाहिए ना भैया। अगर वैल्यूअर है तो गवर्नमेंट एक ही होना चाहिए, उसका सेंटर अलग अलग जो हो जाए, कोई हर स्टेट से हो जाए और सिटी में हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो एक ही हो। हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नाम तो आरबीओ। सरकार सोच रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कितने ऑर्गेनाइजेशन भारत में है? 12-13। और सभी का जो सेटअप, सबका जो पॉलिसी है अलग है, सबका स्केलेटन अलग है, सबका जो बॉडी लैंग्वेज अलग है, सबका फ्रेम फीस स्ट्रक्चर अलग है। ऐसा क्यों? आप अगर देखे हो, कोई अगर एनआईटी आईआईटी में पढ़ रहा है, फीस तो लगभग बराबर है ना, बोला लगभग बराबर है, तो ऐसा तो क्यों नहीं हो रही? सब अलग अलग है। आपके पास उनको कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं है। मैं बहुत सारे आरबीओ जो आरबीआई से क्या आरबीआई करके जो आरबीआई पास में बहुत सुना। अभी हम लोग गए थे हमारा लोकल एमपी पास यही कानपुर में, तो एक वैल्यू ने रोना शुरू कर दिया। हमने क्या हो गया भैया? बोला 75,000 रुपया डिमांड कर रहे आरबीओ ने, 75,000 प्लस जीएसटी 18%। हम जो है साल भर से कोई काम ही नहीं किया, हम 75,000 कहाँ से लें भैया बताओ? हमने झगड़ा हो गई। बोला ये मुद्दा भी तो सरकार को सुनना चाहिए। सरकार कान बंद कर रखा है, लेकिन हम वैल्यूअर को उनके अंडर करें क्यों करेंगे? तो इसलिए हम चाह रहे हैं हम सभी लोग मेहनत करें, कम से कम दिल्ली वाले, क्योंकि हम पार्लियामेंट को जो जानना है, पार्लियामेंट को खबर करनी है, तो हम दिल्ली वाले से ज्यादा अपील करते हैं, दिल्ली और आसपास के एरिया की, कि कम से कम उनको भी सहयोग हमको मिले और वो कुछ ना कुछ हम बताएं कि वो हमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम कुछ आगे इसको जो है ना कुछ आगे बढ़ाएं। नहीं तो होगा क्या, फिर हम वही सरकार का जीसा करते रहेंगे, आरबीओ का भी जीसा करते रहेंगे। वो आपसे 50%, जैसे वो कह रहा था 75,000, कल को जो रूल पास हो जाए कहीं भैया 75 नहीं भैया, भूल जाओ, जमाना चला गया, महंगाई बढ़ गई, अब पेट्रोल डीजल बढ़ ही रहा है, तो हमारा फीस ही पड़ गया 1 लाख रुपया दो, फिर क्या करोगे? और किस पर रोगे? कुछ है नहीं, रोने को है नहीं, क्योंकि हम सरकार ने पास कर चुका है। तो इसलिए अभी समय है, अभी हम चुपचाप अपने घर में न बैठे, हम आगे बढ़े और जितना जिससे हो पाएगी, चाहे हम राजनीतिक हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कहीं पे भी हो या प्रेसबाजी हो, अगर आप मीडिया में, मतलब दिल्ली में जो लोग मीडिया में, कम से मीडिया में, अगर मीडिया छप जाए तो कम से दिल्ली में मंत्री जंत्री फंत्री जितना सब वो भी सुनने आएंगे क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप जितने सारे लोग हैं सभी लोग इसका अपोज करें। आरबीओ हम चाह रहे हैं कंट्रोल हो, देखो बिना कंट्रोल, हम कंट्रोल अभी भी कोई भी वैल्यूअर 34 वैल्यूअर का अभी कोई जाके कहीं जिंदाबाद मुर्दा कहीं किया? कभी नहीं किया। अगर आप देखोगे, चाहे और कोई प्रोफेशनल को हो, जिंदाबाद मुर्दा जरूर करते हैं, घेराव करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वैल्यूअर कभी नहीं, क्योंकि वैल्यूअर आर वेल बिहेव्ड, वेल कंट्रोल्ड। तो इसलिए आप उनसे कहे तो किससे कंट्रोल रहेंगे? क्यों कंट्रोल रहेंगे? क्यों जरूरत नहीं। हम इतने साल से कर रहे, कभी भी आप सुने होंगे एडवोकेट ने किया, फलाना ने किया, फलाना ने किया, वो हड़ताल किया, वो क्या सो किया, कभी भी आपने सुना कि वैल्यूअर ने को हड़ताल किया? कभी नहीं किया। वो शांति प्रिय है, वो शांत रहना चाहते हैं, लेकिन अशांति कौन करा रहा? सरकार करा रहा। और जहां तक हम अभी आज डिस्कशन कर रहे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी, जो सिलेक्ट कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया था वो ड्राफ्ट हटके वो बाईपास हो गई। सिलेक्ट कमेटी में जो बाईपास, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करी थी, उसमें हमारा आरबीओ का जिक्र ही नहीं है। तो ये आरबीओ वाली पार्ट रूल में कहां से आ गया? तो इसका मतलब क्या? सिलेक्ट कमेटी और जो रूल्स बनी उसके बीच में जो गैप है, वो गैप में कोई ना कोई आदमी उसके अंदर है जो इसको गड़बड़ किया। तो इसलिए ये बातें सरकार तक जाना जरूरी है कि हम आपको जो भी सिलेक्ट कमेटी है उनके बात में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा सबसे ऑब्जेक्शन है जो सिलेक्ट कमेटी ने जो तय करी थी तो क्यों चेंज हो गई। हम अभी हम लीगल कमेटी वही कह रहे थे, सिलेक्ट कमेटी में एक चेयरमैन है बैजंत पंडा साहब, उसके अंदर 30 एमपी है। एमपी को सैलरी मिलती नहीं मिलती है? मिलती है। अगर उन्होंने सिलेक्ट कमेटी काम करी, उनका महीने 2 महीने 3 महीने कुछ समय तो लगा होगा, जितना समय लगा होगा उसको उनको तो पैसा मिला होगा, चाहे सैलरी रूप में हो कहीं भी रूप में हो। अगर आप सिलेक्ट कमेटी की बात नहीं मानोगे और अपने मन से कर दो तो उनका तो हमारा पैसा बेकार है। पैसा किसका है? हमारा। हम आपको इनकम टैक्स दे रहे हैं, आपको जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं आपको।
तो इसलिए ये है जो खिलवाड़ हो रही है, ये खिलवाड़ हम चुप बैठने से नहीं होगा। हमें जितना, हम ये भी नहीं कि हम अग्रेसिव हो गए, हम नहीं कि हड़ताल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जितना रिप्रेजेंटेशन है, कम से रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे जाए, जो जो हमारा मतलब की है वहां तो जाए। अब ये चुप बैठने का समय नहीं है, क्योंकि और थोड़ी दिन रह गया तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं। अभी हम खैर हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारा फेवर में होगा, लेकिन तो उम्मीद है, लेकिन खाली सोच के घर में बैठ के अगर सपना देखेंगे तो भी तो नहीं है ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, जिससे जो संभव है हमको मदद करनी पड़ेगी। हमको इन द सेंस क्या, देखिए इसमें किसी व्यक्तिगत काम है नहीं। अगर सफर और अगर आश्वासन भी नहीं होगा, देखो हम आश्वासन का एक एक सदस्य जो है वो अपनी सबका इंडिविजुअल है। अगर हमारा लीगल कमेटी रात दिन मर रहा, आप पूछिए, अभी बैठे हैं सूर्यादय आनंद बैठे हुए, 2 लोग अभी डायरेक्ट पार्टिसिपेट है, रात को 11-12 तो मैं उनको फोन करता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर, उनको कंट्रोल रखता हूँ। तो क्यों करते हैं, मतलब खैर उनका भी फायदा है, क्योंकि अगर आरबीओ से चला जाएगा नुकसान सुगता जी की भी होगा, उनका भी होगा, हमारा भी होगा, आपका सबका होगा। लेकिन लीडरशिप का जरूरी है कि हम लीडरशिप करनी है। एक लीडरशिप के सब लोग तो सब कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी कम से कम जो बैठे कुछ बोले और आगे वो क्या कर रहे हैं आश्वासन के लिए, कम से हम सुने तो सही। हम देखा, मैं अभी बताऊं, इसमें अभी पे ऐसा लोग बैठे होंगे जिनको मैं फोन कर रहा, कोई 15 दिन से फोन ही नहीं उठ रहा, पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा। क्यों ऐसा नो कि दास जी कहीं, अभी हम सुगाता से, आनंद से, उपाध्याय से हम कम से डेली 4 से फोन करते, रात को 11 बजे फोन करते, कभी उनका फोन हमारा ये नहीं कि हम अटेंड ना करें, मतलब ये नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, पर ये प्यार है, वो संस्था के लिए प्यार है, आपके साथ प्यार है, वो सबके आपके लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए जो जो लोग बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा वो कुछ सलाह जरूर दे, आगे क्या करना और क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि 9 तारीख को पार्लियामेंट स्टार्ट होगी। हो सकता है ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 9 तारीख से हो सकता है ये पॉइंट उसमें न उठाया जाए, लेकिन फिर भी हम तो आगे तैयार रहनी पड़ेगी। कम से कम अपने एमपी से तो इसको करनी पड़ेगी। आपका कि जहां तो दिल्ली वाली बात है, देखो मैं अभी बार इसलिए दिल्ली कह रहा हूं कि यहाँ का अखबार दिल्ली वाले एमपी मंत्री नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली का अखबार कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अगर किसी मंत्री या नेता कोई ऑफिसर कान आंख में पड़ गया ना, उसका बहुत असर पड़ेगी। तो इसलिए विशेष स्तर पे मैं दिल्ली वालों को अनुरोध करूंगा वो हमके मदद करें, पार्लियामेंट और पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और पेपरबाजी भी। तो अगर जो दिल्ली वाले हैं कम से बताए कुछ तो करे हमारे लिए, मतलब इस समय घर में बैठने से नहीं है, हम काम करने से। तो अगर कुछ बोलना है किसी को प्लीज बोलिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम तो 8 फरवरी से लगी हुई है, रात दिन कर ही रहे। इन लोगों को तो मैं सोने नहीं दूंगा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग कम से बताइए, जो हम लोग करें एमपी को अप्रोच करनी, ये करनी, आप लोग कहाँ तक हमारे साथ है, कितना आप लोग मेल भेजा, कम से कम बताइए। जो नहीं भेजा कम से कम कल जो है सुबह उठ के कुछ काम न करते हुए वहाँ अपने स्थानीय एमपी से मिले, वो कुछ काम करे। कम से कम अगर हर एमपी से चला जाएगा ना रिप्रेजेंटेशन, तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। हम कोई एग्रेसिव नहीं करते, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो बीच में जो कमेटी का जो ड्राफ्ट है और रूल में ये जो डिफरेंस हुआ, यही गलत हो गया। ये क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये कही जाए कि सिलेक्ट कमेटी से खाली एक फॉरवर्ड करता है, तो फिर सिलेक्ट कमेटी रहना बेकार है। हम 30 एमपी है, हमने अभी कल गए थे, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता मैं क्या काम किया। सपा का यहाँ पे अखिलेश जी का गढ़ यहाँ पे कन्नौज में, उनका घर में शायद 5-6 एमपी है। हमें हमारे क्लाइंट ने कहा कि भैया 9 बजे तक निकल जाए, पहुंच जाओ वहाँ पे, तो मुलाकात हो जाए, उसके बाद पता नहीं नहाने चले जाएंगे, ये करेंगे, तो आपसे मुलाकात होना थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप बैठना पड़ेगा। मैं सुबह 6 बजे, मेरा ड्राइवर नहीं था, गाड़ी लेके यहाँ से गया, 6 बजे यहाँ से निकला, वहाँ 9 बजे उनका दरवाजे पहुंच गया। आप फिर जो वहाँ पहुंचा, पता चला कि साहब 11 बजे साहब मिलेंगे। तो मैंने चलो ठीक है, जब कानपुर से आया हूँ, यहाँ से 175 किलोमीटर है, जब आया हूँ 6 बजे गाड़ी चला गया, तो यहाँ 2 घंटे बैठ जाऊँगा। तो वहाँ बैठा रहा, फिर 11 बजे से लोगों ने आना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा साहब बगल वाले ऑफिस में आप लोग बैठ जाइए, बोला ऑफिस में बैठ गया। क्योंकि हमारा किसी अच्छा अप्रोच था मेरे तरफ से, वो भी मेरा क्लाइंट था। तो मैं कह रहा हूँ, मतलब वैल्योर का जो है हनुमान जी को ये पता थोड़ी था 7 समुद्र लांघ जाएंगे, कभी नहीं पता था, उनको याद दिलाया गया तो सांग समझ लोगे। ऐसे हम लोग भी, आप समझ लो पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं, हम कैसे हनुमान बन सकते हैं। तो फिर हमने जो क्लाइंट को फोन किया, आप सबके पास अपने अपने क्लाइंट है, आप सबके पास पावर है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर मैं क्लाइंट को फोन न करता, वो हमको मिलाता नहीं। फिर वहाँ करीब 50 लोग बैठे थे, वो 11 का टाइम तो था, लेकिन मेरे ख्याल 11:15 बजे संसद जी बाहर निकले। अखिलेश नहीं थे, उनका भाई थे आदित्य यादव जी थे। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो मिलने वाला था, उन्होंने क्योंकि हमारा नाम परिचय थे, सबसे पहले मेरे से मुलाकात हुई। तो मैं अपना दुख ही बताई कि हम आश्वासन में क्या क्या है।
जो सिलेक्ट कमेटी में उनका भी 2 सदस्य है, और दोनों सदस्य में से एक जो एमपी है उन्होंने भी हमारे फेवर लेटर लिख चुके हैं। हमारा अम्बेडकर का जो हमारा सदस्य है, मेंबर है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो कहने बाद तुरंत रात को मैंने कहा और सुबह उनसे लेटर लिखवा हम भिजवा दिया। तो हमें ऐसे चाहिए धुरंधर आदमी जो काम कहो तो तुरंत करके दे। आप पूछना, मैं एक्चुअली क्या ना, कुछ मतलब नाम कुछ लोग चाहते हो नाम ना ले, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आपको इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो धुरंधर व्यक्ति ने रात को सब लोग 9 बजे मैंने कहा, बोला साहब टेंशन ना लो, मैं कल सुबह आपको लेटर लिखा, आपको लेटर फॉरवर्ड करता हूँ। वो सपा के है और इस सिलेक्ट कमेटी का मेंबर भी है। तो हमको उन्होंने वादा किया कि साहब टेंशन ना लो, हम इसको देखेंगे, हमारा आप पार्टी कार्यालय आ जाओ तो वहां इसको हम फॉर्वर्ड करेंगे, हम इसको कैसे अपोज करेंगे। आपके साथ निहायत ही गलत हुआ, ये उन्होंने सबके सामने कही। तो ऐसे ही शब्द भी आप लोग भी अपने अपने पार्टी से कह सकते हो, मतलब कहला सकते हो। तो हमारे पास सबके पास पावर है, ये नहीं कि कोई किसी का बिना पावर है। आप मान लो वैल्यूएशन करते हो, अभी तो काम हो गया, पहले जमाने में 8-10 प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते थे, कोई ना कोई तो परिचय निकलता ही था। तो ऐसे परिचय में ऐसा परिचय होगा जो ठीक जगह पहुंचा देगा। तो इसलिए रात भर आप सोइए, चिंता करके सोइए कि आपका परिचय कहाँ का जहां पे ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन आप सबके है, हम मतलब मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, पूरा परिवार के लिए, पूरा वैल्यू इंडिया फैमिली के लिए, पूरा इंडिया के लिए, कि आप सोचिए, प्लानिंग करिए कि आपका अप्रोच कहाँ तक है, कौन मदद कर सकता है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी पीछे हट जाएंगे फिर जिंदगी भर हटते चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं होगी। आरबीओ जितना रुलाएगा आप रोते रहोगे और तभी आईबा भी कुछ नहीं कर पाएगा। मजबूरी है, क्या करोगे, जो रूल ही पास हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे। अब ये रूल, ये भी जो डाउट हो रही है कि ये पार्लियामेंट, अभी तो खैर निश्चित हम चल रहा है कि होता है पार्लियामेंट, लोकसभा ही जाएगी, राज्यसभा जाएगी और उसके बाद फिर अप्रूव होगी, प्रेसिडेंट से होगी, साइन होगी, ऐसा कुछ चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ मन में डर भी है क्योंकि आजकल ताली मार के बिल पास हो आती है, अगर ऐसा हो गया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए हमें हर चीज से होशियार होना चाहिए, क्योंकि हम देखो, हमारे साथ हमारा परिवार मतलब 5 लोग हैं, हमारे साथ 5-6 लोग काम करते, उनका परिवार है, तो ये वैल्योर के साथ कम से कम 30-35 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर हम 40,000 मेंबर है, वैल्योर है, तो 40 इंटू आप सब गुणा कर लो कितना हो, कितना लोग अफेक्टेड होंगे। तो इसलिए अभी 2-4-6 दिन जो भी है, अभी तो खैर 9 तारीख को संसद चलेगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ सोचता डिसीजन हो ना हो, ये जिससे बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए तैयार होनी पड़ेगी। आपका जहां पे आए, यहाँ तक आप दिल्ली पहुंचो, अपना एमपी से फोन करो, कुछ करो, लेकिन कुछ करो जरूर, चुप न बैठो। ये हम सबको निवेदन करते हैं, आशु तरफ से, मैं व्यक्ति तरफ से, अब सभी बंधुओं के तरफ से, पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको ताकत बैठे, आपको ताकत है, पावर है, सोचने वाली बात है। हनुमान जी को पता नहीं था वो 700 लोग पार जाए, कभी पता था, लेकिन उनको कही गई भैया आप करो, आप तर जाओ। ऐसे मैं कह रहा हूं, आप कर सकते हो, करो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर नहीं कर पाएंगे बस ठीक है, फिर जय राम जी की और कुछ कहने होगी। सरकार तक, प्रशासन तक, प्रेस मीडिया तक खबर पहुंचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर आपसे कुछ कहना हो तो फिर आप बताइए। उसके बारे में कुछ किसी को कुछ कहना हो। 3 कॉमन एजेंडा हम 7-8 मीटिंग पे फाइनल किए हैं, तो ये कॉमन एजेंडा से हट के अगर किसी को कुछ कहना तो ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं कि हम उसको फाइनल तक कर ही चुके हैं कि हमारा एजेंडा कॉमन एजेंडा। क्योंकि जब सब मिलके काम करें, सबके व्यक्तित्व मामला, सबके अपना फ्यूचर वाली बात है, तो ये कॉमन एजेंडा हम कल 6-7 मीटिंग से ये हम फाइनल किए। उसके बावजूद ही अगर आपका कुछ एडिशन करना हो तो भी आप बोल सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ जब ज्वाइन किए खाली सुनिए मत, बोलिए जरूर। सुगाता जी आपको कुछ कहना? एक्चुअली आनंद का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो कुछ दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक चीज में हमको मदद मिलता। मेरे पास अभी 28 मेंबर जुड़े हुए जी। एक्चुअली देखिए, आज की जमाना सोशल मीडिया का है जी। दबाव तब बनता है जब एक पर्सनल अप्रोच होता है, लॉबिंग होता है, पैसे की ताकत होता है, प्लस दूसरा एक बात है सोशल मीडिया बहुत बड़ा जोर होता है। आपको पता ही है, सब लोग वी आर वेरी सीनियर्स, हम सब
सर एक्चुअली एक इंस्टाग्राम और एक ट्विटर, या जिसको हम एक्स बोलते हैं आजकल, ये दो चीज, मेरा अपनी बात करूं, मेरे को नहीं आता है सर, बट आई नो द यूटिलिटी, मेरे को नहीं आता फ्रैंकली। तो अगर ये कोई मेंबर्स जो इसमें आज अवेलेबल है इस मीटिंग में, ये दो चीज हैंडल करने में अगर जिस एक्सपर्ट है, आइडर इंस्टाग्राम या ट्विटर एक्स जो भी है, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम और ट्विटर में अगर उसको अपन ट्रेल कराएंगे या फ्लोट करेंगे, मेरे ख्याल से पब्लिक जो अपने सोशल मीडिया में कुछ चीज जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया इस बारे में, हम पहले कर सकते थे, मेरे ख्याल से हम आज से 15-20 दिन पहले कर सकते थे, बाद जहां जगह वही सपेगा। ये चीज पर्सनली मेरे को नहीं आता है सर, सोशल मीडिया वाला पार्ट में देख रहा हूं, बट ये इंस्टाग्राम और ट्विटर मेरे को नहीं आता है। इफ कैन समबडी हेल्प अस आउट, तो दास साहब का मतलब उनको कोऑर्डिनेट करके AIVA का एक ट्विटर अकाउंट खुलवा दे, वहां से फिर कैसे करना है इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अगर ये कीप को समबडी इज एक्सपर्ट इन दिस, मेरे को नहीं आता है बोथ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, दीज आर द वेरी पावरफुल सोशल मीडिया टूल्स है, ये बोलना चाह रहा हूँ सर। भोटो था तुमको देनी, ललित नहीं है। हाँ, आज सुबह ने अच्छा याद दिलाया। अच्छा, ट्विटर के लिए हमारे के मिलने वाले हैं, उड़ीसा की है, वो दिल्ली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, इनकम टैक्स में है। तो उन्होंने उन्होंने जो सलाह देते रहते हैं, हम वही काम करते रहते हैं। तो आज सलाह में एक सलाह उन्होंने ऐड कर दी कि सर आप ट्विटर अकाउंट में डालो। ट्विटर में होने से भाई वो तो थोड़ी सी अनऑफिशियल होगी, लेकिन उससे क्या होगी, सबकी आंख खुल जाएगी। तो इसलिए हम आज से अभी तक सोचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि अच्छा ऑफिसर है, दिल्ली में पोस्टिंग है, तो उनके एडवाइस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर हम लोग जो लगे हुए हैं उस पर, तो इसलिए सुगता जी हम लोग चिंता में है कि ये होना चाहिए। अगर आप लोग सभी लोग भी अपने अपने ट्विटर अकाउंट में डालें, तो उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ट्विटर जाती है वो शायद तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिखता है, और फाइनेंस में दिखता है, और इनकम टैक्स वाले भी दिखते हैं। तो इसलिए ट्विटर अकाउंट में पोस्ट करने से ये अनऑफिशियल ही है, लेकिन इसमें ना सभी जान जाएंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप लोग सभी अपना इंडिविजुअल में ट्विटर खोल के डाल सकते हैं। देखिए, ये तो कोई व्यक्ति समस्या है नहीं, मतलब आप भी, आपकी समस्या, हमारा समस्या, जितना लोग 28-30 लोग जो बैठे हैं, सबकी समस्या है। तो अगर आश्वासन अपने तरफ से तो इसमें लगा हुआ, और मेरे ख्याल में हो जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति में वो ट्वीट कर लिए, तो उसमें होगा कि देखो यार कुछ चीजें हो रही, कुछ गड़बड़ हुआ। तो अभी तक एक्चुअली जैसे मैंने कहा, सिलेक्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया और जो रूल बना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? तो ये सरकार को, देखिए सरकार के पास बहुत काम है, हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ। अगर आप मान लो घर की गार्डियन हो, घर की पापा हो, आप अपना बच्चे से कह दिया भैया वहां से लाना 2 किलो आलू ले आना, हाँ, तो उन्होंने क्या लाया ना, आप तो कह दिया, पैसा दे दिया। तो सरकार ने कह दिया भाई काम करना, सरकार ने अपना स्टेक होल्डर को बुला लिया, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो आलू जाके दुकान से लाया, कहीं नीचे गिरा था लाया, क्या क्या था, कैसे मालूम है? तो इसलिए ये चीजें, इतना बड़ा देश में सरकार को इतना कंट्रोल में होना, मतलब थोड़ी दिक्कत हो रहा हो। तो सरकार को ये जानकारी देना है तो हमारा, क्योंकि हम अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने नाते अगर कहीं कुछ गलत हो रही है तो इन्फॉर्म करना है तो हमारा जिम्मेदारी है। कल को सरकार कहेगा, कोई भी कंसर्न ऑफिसर कहेगा भैया अगर इतना गलती आपने पाया, क्या आपने हमसे कभी खबर किया कि गलती हुआ? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इसलिए जो गलती हो रहा है उसको भी सरकार तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर वैल्यूअर है, हम वैल्यू से, हमारा रिपोर्ट में लाखों करोड़ का फाइनेंस होती है, तो जाहिर सी बात हम रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, ट्विटर बना के हम अपना इंडिविजुअल तरफ से इसको कोशिश करना भी जरूरी है। हम तो आशु लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के, देखो किसी का गाइडलाइन से तो हम काम करनी पड़ती है। तो आज ये पॉइंट उन्होंने उठाए, तो आज से सुबह से हम लोग इसमें लग गए थे। जैसे सुबह का ये पहले से करना चाहिए था, लेकिन कुछ जैसे हमने लिस्ट बनाई, क्या करना नहीं करना अभी पता ही नहीं था। तो अभी जितना दिन किया उसमें हुआ कि कहाँ कहाँ पे क्या अप्रोच है, क्या नहीं, सब हो गया। तो इसे आगे कोई जरूरत पड़ेगी वो अप्रोच हमारे काम में आएगी। तो लेकिन ये कि जहां तक ट्विटर अकाउंट है, आप अपने अपने स्तर से भी अपना घर में अपना बच्चों से कह के इसे भी कर सकते हैं ट्विटर में। एक में मैं एडिशन कर दूं, दास साहब ने कह दिया,
जो ट्विटर हैंडल में जो भी हम डालेंगे ना, इट इज ऑफिशियल सर। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ट्विटर एज वेल एज ट्विटर में ऑफिशियल है। मतलब इसको जितना मैं समझता हूँ इसमें टैग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्विटर में कुछ चीज डाले, सपोज एक कोई पेपर्स डाले, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, तो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है या मिनिस्टर है या मिनिस्ट्री है, उसका टैग करेंगे। मतलब समथिंग लाइक आप एक मेल कर रहा है, सब देख रहा है मेल को, बस मेल को बीसीसी भी किया हुआ है सबको और कॉपी किया हुआ है उनको, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मूव करता है ट्विटर एक्चुअली, जितना मैं समझता हूँ। सो बेसिकली ये ऑफिशियल है, दिस इज नॉट अनऑफिशियल, दिस ऑफिशियल। अर्थात आप ट्विटर ट्वीट करेंगे कोई आपकी प्रॉब्लम को या कुछ भी करेंगे, ऑब्वियसली विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। हम जो काम कर रहे हैं विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास पूरा अधिकार है, कोई चीज बन रहा है जो हम स्टेक होल्डर है, डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, उस पर हम अपने ऑब्जेक्शंस और क्लैरिफिकेशन डाल सकते हैं। सो वी आर विद इन द वेरी मच पेरिफेरी ऑफ द लॉ, हम लीगल उसके अंदर है। तो वो चीज हम ट्विटर में डालेंगे, टैग करेंगे, निर्मला सीतारमण मैडम है या नरेंद्र मोदी जी है या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या रवि अग्रवाल जी है जो कि हमारी चेयरमैन साहब है सीबीडीटी का, या और भी ऑफिशियल्स है, या न्यूज़पेपर को आप टैग कर सकते हैं जो फाइनेंशियल टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, they are related to the economy because this subject we're talking about is very much related to the economy, ठीक है ना। तो ये सारे चीज करेंगे तो किसी न किसी नजर में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड दोबारा बता रहा हूं, ये ऑफिशियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा चीज जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है दैट कैन बी ट्वीटेड, दैट कैन बी टैग टू समबडी, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है, जैसे कई बार आपने सुने होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, जैसे आप सपोज मैं भी किया था एक बार, मैं तो खुद नहीं कर पाया, मैंने किसी को बोला था, वो कर दिया था, इमीडिएट होता। तो क्या हुआ था, मेरे वाइफ ट्रेन में आ रही थी इस कमिंग, और पानी नहीं था, 3 घंटा हो गया, उस सेकंड एसी में पानी नहीं है, और सब लोग चुपचाप बैठे हुए। तो मेरे को फोन करके बोले तू कुछ, मैं बोल मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ट्वीट कर सकते हैं इसको, तो मैंने किसी को बोला, उसे रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, आधा घंटा बाद नेक्स्ट ट्रेन में, जो स्टेशन में ट्रेन है ना, वो पानी पानी बोला और आके लिखा के लेके गई मेरे वाइफ से, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ट्वीट दैट हैज बीन टैग टू रेलवे मिनिस्ट्री एंड श्री अश्विनी वैष्णव साहब। ये है ट्विटर की ताकत, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल और किसी को कुछ कहना नहीं है, तो लेकिन जाने से पहले सबसे मतलब अपनी मन ही मन संकल्प कर लें कि कुछ ना कुछ हमारे लिए आंसू कुछ ना कुछ करें। तो कैसे भी अप्रोच ढूंढे, लॉबिंग बनाए। तो आज हमारा ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, तो मैं हमारा कानपुर सेंटर के चेयरमैन और काउंसिल मेंबर आशुतोष श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक दें। हाँ हेलो, हाँ थैंक यू सर। थैंक यू दास साहब, आपने तो खैर बहुत मेहनत की है, मैंने देखा भी है, और मैं यही चाहूंगा सारे मेंबर से, दास साहब की बात का अगर अमल कर लेंगे हम सब लोग तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। हालांकि आज हमारी जो यहाँ पे मेंबरशिप शो हो रहे हैं बहुत कम हो रहे हैं, पता नहीं, जबकि आज इतनी इम्पोर्टेंट मतलब वो पोजीशन चल रही है, लोगों के ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए थे इसमें। लेकिन खैर आप सब लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सहयोग बनाए रहेंगे तो हमेशा हम लोगों की जीत होगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।